کوئی بات کہہ دے کہ تم ایسا ہو تو وہ ایسا ہے، اور اگر اللہ نے کہہ دیا کہ آپ ایسے ہو تو ایسے ہو. کیا ہے وہ اسٹینڈ ہے. کیا ہے وہ؟ اگر چھوٹے نے بولا سمجھے کہ جیسے بھی آدم السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اے میرے رب میں جو ہے اپنے نفس پہ ظلم کیا، میں ظالم ہوں. آدم السلام نے کیا کہا؟ قرآن میں ہے، قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے. آدم السلام نے کہا کہ میں اللہ میں ظالم ہوں، میں نے اپنے نفس کو ظلم کیا، میں ظالم ہوں. قرآن میں ہے کہ اچھا اب یہ آیت کے سامنے رکھ کر اگر کوئی کہے آدم علیہ السلام تو ظالم ہے، کیا ہے؟ ہاں ظالم ہے، تو آپ خارج اسلام ہو جائیں گے. اگر کوئی بول رہے قرآن میں لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ لوگ بولے کہ یہ جو تم بول رہے ہو نا یہ گستاخی ہے، اور وہ جو بول رہے ہو وہ خاص ہے. کیا بات ہے. بے شک بے شک. آدم علیہ السلام کا کہنا اب جیسے کہ اب تمہارا ابا بولے ارے میں تو کتا ہوں کتا، اب تم بولے ارے ابا نے خود بولا میرا ابا کتا ہے. کیا ہے؟ اگر تم بول دو گے تو گستاخی ہو جائے گی، اگر وہ بولتے ہیں تو وہ خاص ہے. کیا ہے وہ؟ ہاں ان کا کہنا کیا ہے وہ خاص ساری ہے. سمجھ نہیں بات، وہ دوسروں کا کہنا گستاخی ہے. اور یہ بھی سمجھ میں آتا ہے اگر بڑا کہہ دے تو وہ سمجھ بن جاتی ہے. اس لیے اللہ نے نہیں کہا، اللہ نے کہا اے بھائی کو آپ فرما دو. اور یہ بھی نہیں کہا کہ بشر ہوں، کہ میں مثل بشر ہوں، میں بشر جیسا ہوں. کیا ہوں؟ اور میں اس کو سمجھاتا ہوں مثال سے، ایک حدیث پاک سے سمجھاتا ہوں. کیا ہوا کہ یہ حدیث پاک اس طرح سے کہ بولے ایک آدمی آیا سفید کپڑے میں، اس کے بال بنے ہوئے تھے، خوبصورت جوان تھا. سمجھا؟ خوبصورت آدمی آیا، جوان آدمی آیا، اس کا جو چہرہ خوبصورت چہرہ تھا، بال کالے تھے، بنے ہوئے تھے، نئے پورے بنے ہوئے تھے. اور وہ آ کے حضور کے جو ہے نظاموں سے آنے لگے بیٹھ گیا اور سوال کرنا شروع کیا. سوال شروع کیا، اور جب حضور جواب دے گا نا تو کہتا تھا ہاں آپ سچ کہتے ہیں. پھر سوال کرتا، پھر حضور جواب دیتے، پھر کہتا سچ کہتے ہیں. پھر سوال کرتا، پھر حضور جواب دیتے، پھر یہ کہتے. تو صحابہ تھے نا وہ بولے تو بھائی یہ کون آدمی ہے خود ہی سوال پوچھتا ہے، سوال بھی خود پوچھتا ہے. سمجھے؟ تو خود ہی کہتا ہے کہ بھائی آپ صحیح جواب دے رہے ہیں. کیا دے رہے ہیں؟ اور اس کا مطلب یہ ہے معلوم ہے جواب، تبھی تو کہہ رہے رائٹ ہے. سمجھ رہے؟ یعنی آپ یہ جواب دے رہے، یعنی آپ رائٹ جواب دے رہے، آپ صحیح کہہ رہے. صحیح کہہ رہے کا مطلب ہے اس کو پتا ہے جواب. اور ایسا ویسے نہیں ہے، وہ جواب ہی ہے، سوال ہی الگ تھے. وہ حدیث میں ہے کہ وہ چلے گئے. کیا ہو گیا؟ اور صحابہ کے نام چھ مویاں کرنے لگے. اگر کون آدمی آیا یار یہ کون ہے کون نہیں ہے، تو پہچانتے ہیں نہیں پہچانتے کون ہے بھائی کیا ہے کیا ہے. آدمی ایسے کیسے آدمی ہے تو معلوم ہے یہ کہ آپس میں اس نے کہا ان کو بلا کے رکھا، بلا کے لا وہ بلانے کے لیے. اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے پریشان. ارے بھائی ریگستان ہی رہتا ہے وہاں کوئی گزرے گا نا تو اس کے نشان آتے ہیں. یہ سڑک تھوڑی ہے، ریگستان میں تو یہی پکڑا ہوتی تھی، تو وہاں پہ اس پہ نشان بنیں گے، یہ بنیں گے وہ بنیں گے، بہت ساری چیزیں ہوتی تھیں. ونڈر کر کے وہ لوگ تو ایسا کئی کلو میٹر تک چلے گا تو لوگ اس کو پکڑ لیتے تھے. ان کے پاس ایسے وہ ان کے پاس ایسے گائیڈ ہوتے تھے، وہ سب ڈھونڈ کے آئے گھوڑے پہ اس کو سب چھان مار لیتے تھے. صاحب تو یہ رسول کہیں نہیں نکلے اچھا. صحابہ کیا سمجھ رہے تھے؟ بشر سمجھ رہے تھے. کیا سمجھ رہے تھے؟ وہ بشر سمجھ رہے تھے. اور سب کو پتا ہے کہ جو فرشتہ ہوتا ہے وہ نوری ہے. آپ دور سے بنا یہ سب کو پتا ہے، یہ عام بات ہے. یہ ایسا کوئی خاص نہیں ہے کہ تم کو اس کے لیے پی ایچ ڈی کرنا پڑے گا. سنی کا عقیدہ ہے، دیوبندی کا ہے، یہ عام ہے. جیسے اللہ ایک ہے، اب دیوبندی بھی وہ ایک ہی مانتا ہے نا. اہل حدیث بھی کیا کہتے ہیں وہ ایک، اس پہ تھوڑی جھگڑا ہو رہا ہے. جھگڑا ہے کبھی سنی دیوبندی اہل حدیث بنا جھگڑا کر کے اللہ ایک ہے تو اب تو کسی نے اس پہ جھگڑا کیا اس کے لیے کوئی کو ڈھونڈا نہیں ہوتا. تو اس طرح اس لیے بھی ہے کہ فرشتے دوری مخلوق ہے. جیسے جنات آنکھ سے بنی، وہ کلیئر ہے کہ جنات آنکھ سے بنے، فرشتے نور سے بنے. تو وہ کون سی مخلوق ہے؟ نوری مخلوق ہے. تو وہ کون ہے؟
नूर है, फरिश्ते नूर है। रिश्ते नूर है, नूरी मखलूक है, नूर है, नूर से बने हैं ना, नूर है, समझ में आया? लेकिन वो नूर थे मगर लिबास से बशर में। हाँ। कैसे आए? और अगर 10 साल भी रहते क्या बात है, क्या बात है। तो लोग उनको बशर समझते हैं। क्या बात है। वो बशर नहीं है, वो लिबास बशर में है। क्या बात है, लिबास बशर में तो नूर क्या है नूर, क्या और बात है। लिबास बशर क्या बात है, में क्या बात है, क्या बात है। इसमें है। लिबास से बचना है तो नूरी। है नूरी। जब तुम जिब्राइल अमीन को पूरी मान रहे हैं, और क्या। ये तो मशहूर हदीस है, हदीस जिब्राइल जो है ना, सही मुबारक, इसी के ऊपर इस्लाम खड़ा हुआ है। वो मशहूर हदीस है, उसका हदीस का नाम है हदीस जिब्राइल। अच्छा, इसका नाम है। हदीस ही जिब्राइल है, और यही हदीस की वजह से हमारा पूरा यानी इस्लाम की पूरी जितनी भी बातें हैं उसमें है। उसको वो सवाल करते गए, उसको उनको जवाब देते गए। ऐसा फिर उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, ये जो जिब्राइल अमीन आए थे ना, ये तुमको दीन सिखाने आए थे, यानी तुम्हारे पास वो सवाल नहीं है ना, फिर मोदी से उसमें से भी वो पॉइंट निकालते हो कि भाई ऐसा है कि कभी कभी जो है अपने उस्ताद से, अपने यानी मौलाना से, या अपने पीर से, अपने शेख से, अपने रहबर से, अपने रहनुमा से, अपने गाइड से, अपने मेंटर से आपको ऐसा सवाल पूछ सकते जो आपको पता है, ताकि दूसरों को भी उसका इल्म हो जाए। और हो सकता है वो उसको और ज़्यादा इंटरप्रेट करते हो ऐसा, ये उससे इस्तेमाल करते हैं, उसमें से वो हदीस में से मसला निकालते हैं वो ऐसा। अब लेकिन अब इसके अंदर आके देखना पड़ेगा हुजूर के बारे में, ठीक है? तो कुरान ने भी इंसान को अलग अलग नाम से पुकारा। हाँ, 4 नाम से पुकारा। हाँ? एक जो है आदम का, आप आदम भी है, आपका एक्चुअल नाम आदम है, असल नाम का नाम आदम है, तुम्हारे जात का नाम आदम है, ये नहीं। फरिश्ते तुमको आदम ही पर आप उसको मिसाल से समझाते हैं। अरे तुम जिधर जाते हो उधर कुत्ता देखे कुत्ता ही बोलते हैं। अरे तुम बोलते हैं मेरे गली का कुत्ता ऐसा है यार, वहाँ का गली का कुत्ता वैसा, वहाँ का गली का कुत्ता है, लंदन में जाके उधर कुत्ता है। अरे कुत्ते को डॉग बोलते हो, क्या बोलोगे और क्या बोलोगे? लेकिन सबको कुत्ता ही बोलते कि नहीं? क्या बोलते हैं आप? तो पता क्या चला, कुत्ता जो है उनके जात का नाम कुत्ता है, फिर बाद में उसका नाम टॉमी, डॉमी, पॉमी रख दो। लेकिन एक्चुअल नाम क्या है? वो है तो कुत्ता ही ना। बिल्ली है, उनका जात का नाम बिल्ली है, जात का नाम तो बिल्ली है। इसलिए तो जब भी तो पढ़ाते सीएटी कैट पढ़ाते, मामी नहीं पढ़ाते। हाँ? तो नाम आप कुछ भी रख देते बाद में, लेकिन उसका एक्चुअल नाम तो वो जात का नाम, उसका एक्चुअल नाम चाहिए, समझ सकते हैं? एक जात का नाम होता है, तुम्हारी वहदत का नाम है आदम, क्या है? इसी वजह से आपको आदमी भी बोलते हैं। बता रहे आदमी, आदमी बना आदम से। आदम से, समझ गए भाई? तो सबसे पहला जो अल्लाह ने नाम पुकारा है, तो तुम आदम भी और इब्ने आदम भी। लेकिन मसला कैसा हो जाता मालूम है कि अगर हम सबको उसी नाम, उसके जात के नाम से पुकारेंगे ना तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। वो आदम आया था, वो आदम गया था, वो आदम ने दिया, वो आदमी को बोलता होगा, वो आदम ने घर भी गया, क्या समझोगे आप? समझ पाओगे कुछ? इसलिए फिर हमने अपना एक तारुफी नाम एक्स्ट्रा रख दिया। इनने कुछ अलग रख दिया, इन्होंने अलग रख दिया, तो हमें तारुफी नाम है चाहिए। ये हमारा अपना एक तारुफी नाम, इंट्रोडक्शन नाम है, लेकिन एक्चुअल नाम हमारा क्या है? आदम। क्या है? हाँ, है आदम की औलाद। आदम की औलाद कौन है? कुत्ते का औलाद कुत्ता होगा ना, बिल्ली का औलाद बिल्ली होगा, आदम की औलाद क्या होगी? इतना तो समझो। ये तारुफी नाम है आपका जो ऊपर रखा गया, ये पर तारुफी नाम है, इंट्रोडक्शन कीजिए, वरना हमारे एक्चुअल नाम से सबको एक्चुअल नाम से पुकारे तो क्या होगा? ये ठीक है। उसके बाद इनको जो है अल्लाह ताला ने इंसान करके भी कहा, इंसान भी कहा। हाँ, लेकिन वहाँ आयत देखना पड़ेगा, उसमें आयत में अल्लाह ताला कहता है बल्कि इंसान की तकलीफ, हमने इंसान को बेहतरीन तकलीफ से पैदा किया, यानी बेहतरीन पैदा किया, उसके अंदर ऐसा तकलीम होना चाहिए जिसमें ये आ गया। फिर एक जगह कहता अल्लाह ताला हदीस मुबारक, अल इंसान उससे भी माना से, इंसान मेरा वेद है, मैं इंसान करता हूँ, इंसान मेरा वेद और मैं इंसान करता हूँ। जब वो अल्लाह का राजदार बन जाता है तो इंसान बन जाता है, मुकामी इंसान पा लेता है। हाँ, इसलिए अल्लाह, इसलिए मिर्जा गरीब क्या लिखते हैं, यहाँ आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना, यहाँ आदमी को भी मुयस्सर है। आदम यानी आदमी यानी आदम होके पैदा होते हैं, वो बनना इंसान पड़ता है।
क्या करना पड़ता है? इंसान को करना पड़ता है। तो सब ये बोल भी देते हैं, अभी तो इंसान है क्या नहीं है, क्या जानवर है, इंसानियत है कि नहीं तेरे दिल में? है ना? जी। तो इंसान जो है एक राज है अल्लाह का। क्या? उसको पता ना इंसान उससे भी वहाँ से इंसान मेरा भेद है, इंसान मेरा राज है और मैं उसका राजदार हूँ। तो इंसान का एक पुकार है, क्या पुकार है? इंसान का एक पुकार है, आदम का एक पुकार है, इंसान का एक है। और जैसे कहता है कि वो एक आदम की औरत मतलब आदम ही है। फिर उसके बाद आपको जो है बशर का एक पुकार है। अच्छा अच्छा। हाँ, बशर का एक पुकार है। अब बशर जब कहीं के पुकार है तो यहाँ पर रूहानियत वाली बात है। अच्छा ये बात बशर का मतलब है वो आयत पढ़ना पड़ेगा जहाँ पे अल्लाह ताला ने जब पैदा करते वक्त शैतान से कहा कि भाई वो बातचीत हो रही है, उसमें वो बशर वाली आयत भाई यार तो छोड़ दो, जब तुम्हारे लिए पैदा करने की जो बशर वाली बात करो तो उसमें रूहानियत वाली बात करो। तो बोले जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया, तो जहाँ पे अल्लाह की लम्स और टच है हाँ। उसको बशर कहते हैं। अच्छा ये पॉइंट है। और इसलिए उसमें वो नफक तो फिर इनको ही कहा, क्या कहा? वो नफक तो फिर हमने अपनी रूप फूक दी, और जहाँ पे अपनी रूप फूक के बात की, जो हयूला बना वो अंदर से जो हयूला बन के आया वो बशर है। वो बच्चे। फिर इसका एक मतलब और है, क्या मालूम है? जिसके अंदर दो क्वालिटी हो, ठीक है? शर का मतलब होता है नुकसान, शरारत। अच्छा होता है तो शर, उसको उसके शर से बचा, उसके नुकसान से बचा, उसकी शरारत से बचा। शर, ठीक है, यानी नुकसान। और बा मतलब खैर, खैर। तो जहाँ खैर और शर मिल जाते हैं वो बशर बने। इसको मैं एक मिसाल से समझाता हूँ। अब मिसाल से इसकी ऐसी है कि अगर आप शैतान में ढूंढेंगे तो एक भी खैर नहीं मिलेगा। जो सरापा शर है उसको शैतान मिलेगा। क्या बोलते हैं? हाँ, 1% भी उसके अंदर खैर नहीं, उसको शैतान बोलते हैं। खाली शर ही शर है उसके अंदर, 1% भी उसके अंदर। हाँ, और जो सरापा खैर है इसमें 1% भी जो है शर नहीं है उसको फरिश्ता बोलते हैं। क्या कहते हैं? उसको फरिश्ता कहते हैं। अब जब दोनों को जमा किया, खैर और शर को मिला तो बशर हो गया। इसमें खैर भी है, शर भी है, इसके अंदर दोनों चीजें हैं। मगर चाहे तो शर भी पैदा कर सकता है, चाहे तो खैर भी पैदा कर सकता है। तो बशर भी कहा, क्या कहा? बशर भी कहा। फिर इसको नास भी कहा। हाँ, नास, नास, खलिक नास, लाई नास, इसको नास भी कहा। यानी जब ये पॉजिटिव नहीं था, मैंने तरक्की नहीं किया था, आदि मामूली सब उस पर तो ऐसे नाश बना हुआ। हाँ, फिर ये सत्यानाश कर रहा था। तो नाश भी कर, बचे तो कुछ होगी ना। इंसान भी वजह कि एक ही पुतले को इतने नाम से पुकारा तो कुछ तो वजह होगी। बशर भी कह रहा है, इंसान भी कह रहा है, ये भी कह रहा है, ये भी कह रहा है, कुछ वजह होगी। तो ऐसा है। एक बुजुर्ग जो मस्जिद से निकलते हुए एक पान वाला है ना, दूसरे को पान खिलाते हैं। तो वो पान वाला होता था, अरे हजरत मेरे लिए दुआ करो, बल्कि अल्लाह तेरे को इंसान बनाए। जब भी जावे पान दे दे, दुआ करो अल्लाह। एक दिन बोला यार देखो टू मच हो गया, बोले थ्री मच हो गया, बोले हाँ 4 मच भी हो गया। तो दूसरी चीज होनी चाहिए था, लेकिन ये ऐसा बोले हजरत बजे मैं इंसान नहीं हूँ क्या? चलो मस्जिद से कौन निकल रहे, वो सब नमाजी लोग, और फिर टोपी निकालो तो सर पर तो क्या देखते जिसम है ना वो इंसान का, उसके सर पे सर पर मुँह है ना, किसी का डुमड़ी का, किसी का चीता का, किसी का सुअर का, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। टोपी निकाल के इसके ऊपर का इंसान बना है। और तुम अगर माँ के पेट में बच्चे का अगर देखेंगे ना तो सुअर का शक्ल भी आती है, हर तरह का चेहरा होता है। इसके चेहरे देखोगे तो हर तरह का चेहरा बनता हुआ आएगा, और आखिर में इंसान बनता है। आखिर में सुअर तक का चेहरा दिखता है। तो चेहरे देखोगे तुम परेशान हो जाओगे, कैसे कैसा चेहरा, ये चेहरा वो स्टार्ट टू एंड तक देखो आप, सुअर तक का चेहरा। हर जानवर का भी चेहरा उसमें मिलते हो जाता है।
सुनंदी पे पहुंचता है, अरे क्या बात है।